Hi, welcome you all to the next function of FI BCom, that is marketing. As you all know, in previous session we started with the factors to be considered in product management. You all know that we completed with the 4 factors between 2 lectures. That is, first one was product diversification, then second one was product positioning, third one was product simplification, fourth one was product diversification. Just in 5 minutes we'll recall what was that concepts. Product differentiation basically means जब आप आपके प्रोडक्ट को एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू शेप, कलर, टेस्ट, प्रेफरेंस, लुक्स, पैकिंग, ब्रांडिंग, and you make your product different from the other product which exist in the market, and therefore the demand for the product comes up to you rather than the other competing products in the market, is known as product differentiation. Product positioning means what image your product has created in the minds of the prospective consumers is known as product positioning. Example: best service provider, best quality provider, best accessibility provider, eco-friendly product. Examples: best quality product. Examples are the positioning examples. Next one is product simplification. Product simplification is nothing but when you delete any one of the product, or when you take any one of the product out of the market, that is called, or you stop production and manufacturing of one product from your product line or from your product mix, that is called as product simplification. And to the vice versa, product diversification. Product diversification means adding up any product or making some changes into any product and bringing the product into the market is called as diversification. Adding any product is diversification, deleting any product is simplification. Clear to it? Product differentiation is making your product different from the others so that the demands of the product come up to you. Product positioning means creating the demand for the product in the minds of the prospective consumers so the demand flows to you. That is called as product differentiation. Today we will be dealing with the advantage of product simplification. Simplification का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट को आप मार्केट से निकाल रहे हो, तो इसका एडवांटेज क्या है, दैट वी विल बी डीलिंग टुडे इन दिस सेशन. क्लियर टू इट? Okay, first one is reduce in the cost. As simplification results into discontinuation of certain product, the resources of the product are diversified to the product of some other product. देखो, जैसे तुमने डिसाइड किया है तुम्हारा प्रोडक्ट तुमको मार्केट से निकालना है, जैसे ही आप निकालते हो मार्केट से तो उसमें जो रिसोर्सेज लगे हुए हैं वो रिसोर्सेज आप दूसरे प्रोडक्ट पर लगा सकते हो एंड यू कैन अर्न मच मोर प्रॉफिट आउट ऑफ दैट. इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो कॉस्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट विच इज़ नॉट अर्निंग प्रॉफिट और विच इज़ नॉट यील्डिंग प्रॉफिट टू यू विल बी रिड्यूस. Thus, this other product is produced on a large scale and economies of scales are achieved. और उसके वजह से क्या होता है, दूसरे प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन में आते हैं पूरा कॉन्सेंट्रेशन हमारे सेकेंड प्रोडक्ट्स पर होता है जो ज़्यादा यील्ड करता है और इसलिए हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स हम अचीव कर सकते हैं. Thus, this reduces the cost of production. Further, supervising expenses are also reduced. इसके वजह से जब अपन प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होता ही होता है, उसके साथ सुपरविजन एक्सपेंसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं, इसीलिए प्रोडक्ट का कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है. दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज. नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन. Specification helps specialization. This is because only a few products are produced and hence company can have specialization and standardization for the manufacturer of few items. अभी क्या होगा, अगर आपने स्पेसिफिकेशन किया, सिंप्लीफिकेशन किया है तो आपके जो प्रोडक्ट जो रिसोर्सेस ईल नहीं कर रहे, प्रॉफिट ईल नहीं कर रहे, तो आप क्या करते हो, उसको मार्केट से निकाल फेंकते हो और उसके बाद जो भी टाइम मिलता है कंपनी के पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन किया जाता. इसके वजह से क्या होता है, कंपनी ज़्यादा स्पेशलाइज चीज़ें या ज़्यादा स्पेशलाइज करने के काबिल की हो जाती है, मतलब वो ज़्यादा स्पेशलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन में फोकस करती है.
नेक्स्ट वन है स्किल्ड पर्सनल। अ कंपनी कैन मेक यूज़ ऑफ स्किल्ड पर्सनल एंड हैंस बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी यूज़। जैसे ही आपका एक प्रोडक्ट मार्केट से निकल जाता है तो कंपनी क्या कर सकती है, स्किल्ड प्रोडक्ट यूज़ कर सकती है, स्किल्ड प्रोडक्ट यूज़ कर सकती है, क्योंकि जो मार्केट से निकला हुआ प्रोडक्ट है उसके भी एम्प्लॉयज़ कंपनी अपने ये इसमें यूज़ कर सकती है। जो मार्केट में प्रोडक्ट एग्जिस्ट है वो प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करके स्किल्ड प्रोडक्शन कर सकती है विद स्किल्ड लेबर। मतलब कि लेबर का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगा। जो लेबर आपने उधर हायर किए हैं पहले वाले प्रोडक्ट को, वही प्रोडक्ट के लेबर्स आप यहाँ पर स्किल्ड एम्प्लॉयड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ increase in profit as the resources of the firm are taken away from loss making profit and utilized towards the manufacturing of more profitable one and are utilized जो प्रॉफिटेबल है उसके अंदर यूटिलाइज किया। क्या होता है, देखो जो कम प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिट कमाते नहीं हैं तो वो प्रोडक्ट को हम मार्केट के बाहर निकाल के फेंकते हैं और ज़्यादा रिसोर्सेज हम वो प्रोडक्ट में लगाते हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट यील्ड करते हैं। तो कंपनी का क्या होता है, ज़्यादा रिसोर्सेज प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट पे लग जाता है, तो उसकी वजह से जो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं और कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा कर देते हैं। डेफिनेटली द कंपनीज प्रॉफिट विल इंक्रीज। नेक्स्ट वाला मार्केट कंट्रोल। अभी क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिट यील्ड नहीं करता है वो प्रोडक्ट को हम निकाल फेंकते हैं, तो बचे हुए प्रोडक्ट पे हमारा मार्केट पे कंट्रोल हो जाता है बिकॉज वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू फोकस ऑन। इसलिए हमारा मार्केट में कंट्रोल हो जाता है स्पेसिफिकेशन की वजह से। as simplification result in a lessening of the number of product of the firm, activities such as market analyst, consumer analyst, competition analyst can be extensively carried out। पहले बात तो प्रोडक्ट निकल जाता है तो जो भी एक्टिविटीज़ है जैसे कि मार्केट एनालिसिस है, कंज्यूमर एनालिसिस है, कंपटीशन एनालिसिस है, ये अच्छे से हम कैरी आउट कर सकते हैं। दस अ ग्रेटर कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज ओवर द मार्केट के ऊपर हम प्रॉपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है रीजंस फॉर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। अब हमारा मेन सिंप्लीफिकेशन के एडवांटेजेस क्या थे, पहले वाला था रिड्यूस इन कॉस्ट, सेकेंड वाला था स्पेशलाइजेशन, थर्ड वाला क्या था स्किल्ड पर्सनल, फोर्थ वन है इंक्रीज इन प्रॉफिट, फिफ्थ वन है मार्केट कंट्रोल। ठीक है, ये हमारे एडवांटेजेस थे। वेर एज हमारे रीजंस क्या है, हम डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्यों जाना चाहेंगे, वो रीजंस लेट्स सी विद दैट रीजंस। फर्स्ट वन है जस्ट एज सिंप्लीफिकेशन इज कैरिड आउट बाय अ फर्म बिकॉज it offers various advantages than other, there are various reasons why diversification has to be undergone। जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन के को ऑप्ट किया है बिजनेस ने, वैसे ही बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन को ऑप्ट करती है क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस है। क्योंकि जैसे ही सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस है वैसे ही डाइवर्सिफिकेशन के बहुत सारे अपने खुद में एक एडवांटेजेस है, रीजंस है, इसीलिए कंपनी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ती है। फर्स्ट वाला है न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मेक इट नेसेसरी फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जैसे ही हम लोग टेक्नोलॉजी में डेवलप होते हैं तो टेक्नोलॉजी हमारे न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की भी नीड करती है, इसीलिए हमें डाइवर्सिफिकेशन में घुसना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वाला न्यू मार्केट। जैसे ही हमने न्यू मार्केट को कैप्चर कर लिया तो न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट डिमांड करता है, न्यू टेस्ट डिमांड करता है, न्यू क्वालिटी डिमांड करता है, इसीलिए हमें प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन है कैशिंग इन ऑन द कंपनीज रेपुटेशन। कंपनीज के रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए भी कभी कभी हमें डाइवर्सिफिकेशन में घुसना पड़ता है क्योंकि हम हमारे रेपुटेशन को लॉन्ग लाइफ ऑटोमेटिक एन्जॉय कर सके। वंस अ कंपनी हैज़ एन एस्टैब्लिश रेपुटेशन इन द मार्केट, एनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस इन द मार्केट ऑटोमेटिकली एन्जॉयज दिस रेपुटेशन, हैंस न्यू प्रोडक्ट गेट अ क्विक एक्सेप्टेंस बाय द कंपनी। क्या होता है, जब भी कोई कंपनी अच्छे से रेपुटेशन कमा लेती है तो उसका जो नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता मार्केट में मैच्योरिटी स्टेज पर आने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से जो कंपनी का रेपुटेशन है वही रेपुटेशन की वजह से लोग वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं और कंपनी के जो न्यू प्रोडक्ट है वो ज़्यादा प्रॉफिट एंजॉय करने की कोशिश ताकत रखता है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। अ कंपनी में अंडरटेक एक्सपांशन इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू द फुलेस्ट पोटेंशियल एक्सटेंट। न्यू प्रोडक्ट कभी कभी पूरा पोटेंशियल यूज़ करने के लिए, यूटिलाइजेशन कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए भी होता है, क्योंकि जब हम पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे तभी तो हमारे न्यू प्रोडक्ट पैदा होंगे और न्यू प्रोडक्ट पैदा होंगे तभी तो कंपनी का न्यू प्रॉफिट होगा। देन यूटिलाइजेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट।
Diversification may also take place in order to utilize the byproduct of the manufacturing process. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो बाई प्रोडक्ट होता है उसको यूटिलाइज करने के लिए भी कभी कभी डाइवर्सिफिकेशन लिया जाता है, क्योंकि देखो बाई प्रोडक्ट से ही तो कोई और चीज़ बनती है, तो उसको वेस्ट करके फेंकने से बेहतर है उसको नया प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, द मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर लीड्स टू अ बाई प्रोडक्ट कॉल्ड एज bagasse which is the raw material for the manufacturing of liquor. देखो जो शुगर मैन्युफैक्चर होती है तो उसके वक्त एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसको बगास बोलते हैं, और यही बगास जो होता है अगर ऐसा फेंक दिया जाए तो उसका कोई आउटपुट नहीं होगा, लेकिन वही प्रोडक्ट लिकर दारू जब बनती है उसका रॉ मटेरियल होता है. तो इसीलिए बेगास जो होता है ये ज़्यादा पैमाने पे मार्केट में सेल होता है एंड इट यील्ड्स गुड प्रॉफिट टू द कंपनी विदाउट, in spite of wasting the byproduct, the company tries to make certain things out of that so that the company goes into diversification. ये भी एक रीज़न होता है कि कंपनी डाइवर्सिफिकेशन में जाती है क्योंकि उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो यूटिलाइज होना चाहिए. नेक्स्ट है सोशल चेंज की वजह से. Social change like change in the behavior of the customer, demand, fashion, style motivates the producer to diversify its product in order to meet the new demand. जब कभी कभी प्रोडक्ट चेंज इन द फैशन, सोशल चेंजेस की वजह से, फैशन के चेंज की वजह से, स्टाइल के चेंज की वजह से, मोटिवेशन के चेंज की वजह से क्या होता है प्रोडक्ट में कंज्यूमर जो ओनर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन लाते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपने कंज्यूमर की डिमांड को मीट करना चाहते हैं. नेक्स्ट वन है इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. कभी कभी डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट की वजह से भी डाइवर्सिफिकेशन लाना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे कि द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो कंट्रोल द डाइवर्सिफिकेशन. फॉर example, the policies of the government to grant 10 years tax holiday to the software industries have promoted the expansion into the sectors by making companies. Cleared? क्या है डाइवर्सिफिकेशन के रीजंस क्या क्या है? फर्स्ट रीज़न है न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से कंपनी डाइवर्सिफाई होती है, न्यू मार्केट की वजह से हो जाती है, न्यू कंपनी रेपुटेशन के कंपनी के रेपुटेशंस की वजह से हो जाती है, फुल यूटिलाइज कैपेसिटी की वजह से हो सकती है, फिर यूटिलाइजेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स की वजह से हो सकता है, फिर सोशल चेंजेस की वजह से हो सकता है, फिर इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट की वजह से भी डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है. Clear to it? What are the advantages of simplification and what is the reason for diversification? Basically, diversification and simplification are two elements which are opposite to each other. Simplification means taking one product out of the market. Diversification means adding new product into the market. Clear to it? Please go through the video. Watch the video. If you have any doubts and queries, please pin me on the email ID provided to you by the college. And be at home, be safe. Thank you all. Thank you.